So this is very critical as per se, because the thing that I'll be asking you now will be used in all the other chapters, and it will be used in a very good way in simple interest, compound interest, profit and loss, time and work, and TST, because fraction becomes the basis of percentage and everything when you count in inverse way. Okay, so there will be few things that you need to be very not prove, but you will be you need to be very fast in converting that into the statement into mathematical figures. Like you know that जैसे मान लो कि पहले मैं numbers लिख देता हूँ. Let me write the number. There was a number 60. It increased by 30 and become 90. So if I'll ask you what is the growth in 60, कितना grow हुआ बताओ तो. 30. By 30%. 30. Of course it increased by 30, which is in number. But अगर हम बोले कि कितना part बढ़ा है, what part grew? Half. Half. Of course half. And grew it grown to what number? Like 60 goes to, or 60 becomes what of itself? Increased by half. Half. Okay. Here is say increased by half and increased to what? Agar if I want to write increased to, so what I will write here? So 90. No, 90 so it becomes, now it is in numbers. 3 by Right. 2 or 150%. Exactly, 3 by 2 of itself. So anything when it is increased by half, you can just say that one is being increased by half and it becomes 3 by 2 of itself. है ना, तो हम बोलते हैं ना 1.5 गुना हो गया. When I say 1.5 times, और हिंदी में हम बोलते हैं 1.5 गुना हो गया. So what does it mean? Actually वो उसका आधा बढ़ गया. So that 1.5 गुना is 3 by 2. So similarly, मतलब जब भी कोई change है, if there is a change happening in number, उसको 3 तरीके से हम represent कर सकते हैं. तो I would like to show you the all 3 representation, and you will see that it all these 3 representations are interchangeable, and you need to be very fast in changing from one representation to other representation. So I'll write another number. Let's say 80 is a number which increased by 20 and it becomes 100. So the first type of change representation, I'll be writing it in ratio format, minimum integer ratio format. So I'll say कि इसको आप ऐसे बोलोगे 4:1:5. The change is 4:1:5 का है. Do you see here that how I converted into 4:1:5 का change? दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. So if I just divide all the numbers by 20, so the minimum integer way with which I can represent this change will be 4:1:5. Now I can write the same change with respect to 1. So I'll be writing it here, increased by what fraction? I am writing it with respect to 1. Basically, I am writing it with respect to 1. Like the change which is happening is what part of the original number? 1 by 4. तो ये आप बोलोगे increased by 1 by 4 and increased to what? We just did in previous example. 5 by 4. बस खुशी अब तुम नहीं बोलोगे, है ना, you are passed. अब बाकी वो बोलना दो. So ऐसे तुमको वो नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तुम बोलना. Let me say check कि other people are getting it or not. Himani, Yeah, are you it's getting? okay. Himani, are you getting here? Yes, sir. Increased by 1 by 4, then increased to what will I 5 write by here? 4.
सबको समझ में 500. आ रहा है 5/4 कैसे आ रहा है? साधना, एंजल, Yes, sir. मंजिमा, आर यू गेटिंग हियर? मंजिमा हेलो। मंजिमा बोलेगी Yes, मेरा sir. नेटवर्क खराब। तुम्हें समझ में आ रहा है 5/4 क्यों लिखा जाएगा? Not exactly, sir. देखो अगर प्रीवियस नंबर 1 है, मतलब हम टोटल को 1 ले रहे हैं और इसमें अगर इसका 1/4 बढ़ा रहे हैं तो ये ऐड होके 5/4 हो जाता है। कल की क्लास तुमने देख लिया था यूट्यूब पे? जी थोड़ा बहुत। तुमने पूरा नहीं देखा था? नहीं। ऐसे नहीं करो ना, ये बहुत बेसिक है। मतलब इफ यू लीव दिस राइट नाउ फिर आगे फिर बहुत दिक्कत होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और आज की क्लास और कल की क्लास दोनों ही कंटिन्यूअस में देख के यू नीड टू आस्क फॉर अ डाउट क्लास, ठीक है? सो दैट कि हम उसको कवर कर ले हाथ साथ में ही सबके। ओके। Yes, sir. तो द लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम चेंज, जो चेंज यहाँ पे हो रहा है, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू 100, दैट मीन परसेंटेज इन फॉर्मेट में। So I'll be writing it increased by what percent? बोलो। Sir, 20%. 20% की 25%? Oh, 20. Oh, sorry. Sorry, sir. 25, 100. Yeah, 80. तुम Yeah, got it. हाँ, Got it. तो 20 आउट ऑफ 80 इज 25%। ये 1/4 है और 1/4 इज 25%। टेबल अगर बना लोगे तो ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है? तो increased by 25%, and what will I say when it is asked increased to? Increased to what percent? जल्दी बताओ। इंक्रीज टू 25% बढ़ेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा अपने प्रीवियस नंबर का? एनीवन? चलो खुशी तुम ही बताओ। 25% बढ़ के 125%. ये सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या कि कैसे बढ़ के कहाँ तक चला जाएगा? So if anything is being increased by 25%, it will be 125% of itself. तो अब ऐसी बात है कि इसमें से कोई भी चीज अगर तुम्हें दी जाए, मतलब या फिर अगर ये चेंज दे, या फिर अगर हम तुम्हें ये वाली बात बताएं, या फिर अगर हम ये वाली बात बताएं, या ये वाली वैल्यू दें, तो आप किसी भी चीज को लिख सकते हो। मतलब लाइक इफ आई एम आस्किंग यू, लेट मी गिव एन एग्जांपल। पहले एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं तो फिर तुम्हें उसके बाद हम उसको करेंगे। जैसे मान लो एनीथिंग हैज चेंज फ्रॉम 75, the 75 increased by 25 and it became 100. So what will be the integer मतलब रेशियो चेंज क्या होगा? रेशियो फॉर्मेट पे चेंज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 3:1:4. Is it visible to all of you? Yes, sir. फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इंक्रीज्ड बाय व्हाट? 1/3। देख रहे हो 3 में 1 बढ़ रहा है। इंक्रीज टू बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ? इंक्रीज टू द नंबर विल बी 4/3, इंक्रीज्ड sir. 4/3 4/3. एग्जैक्टली। सो 1 में आप 1/3 बढ़ाओगे और ये बेसिकली क्या हो 1/3 इज द मतलब 1/3 का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा नंबर है उसके 3 टुकड़ों में से एक। तो पूरा नंबर का अगर 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हो, उसमें एक टुकड़ा बढ़ा दे रहे हो तो 4 टुकड़े बन जा रहे हैं ना, इसलिए 1/3 बढ़ा तो 4/3 हो गया। तो इंक्रीज्ड टू जब हम बोल रहे हैं तो इट विल बी 4/3। अगर परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन देना है चेंज का तो इंक्रीज्ड बाय व्हाट? टेबल बनाया है ना तुम लोगों ने? बताओ 1/3 कितना परसेंट होता है किसी भी नंबर का? 33 1/3%। 1/3. एंड इंक्रीज्ड टू कितना बढ़ के हो जाएगा बताओ? 80. 80।
100 तो पुराना है ना, मतलब जब हम बेस नंबर को, जो जो बेस वैल्यू है आपकी 75, उसको हम 100 ले रहे हैं, तो वो 100 से 33 1/3% अगर बढ़ रहा है, तो इट विल बिकम व्हाट ऑफ इटसेल्फ 133 1/3% 133 ना। 133 एग्जैक्टली तो ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई क्या है ये? कैन यू राइट फॉर अ डिफरेंट एग्जांपल? मुझे कौन बताएगा, बताओ, हु विल बी वॉलंटियरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल? बोलो जल्दी। 77 से 22 बढ़ के 99 हो गया। रेशियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज क्या होगा? So 7 is to 7 2 is to 9. यस 7:2:9, 7 मतलब हाँ। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज क्या होगा? इंक्रीज्ड बाय 2/7. 2/7 and increased to what? 9/7. Very good. 9/7, because 1 plus 2/7 it will become 9/7 of itself. ठीक है। परसेंटेज चेंज क्या होगा? इंक्रीज्ड बाय 28 4/7%, और इंक्रीज टू, और ये वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ ये आई एम गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम टेबल, आई डोंट हैव टू कैलकुलेट इट राइट नाउ, इसीलिए आपसे टेबल बनाया जाता है। हाँ So it's very important to remember the table, the values of no the no table. no no you don't have to actually remember. If you Okay. make the table 2 times na, you will get to know how the values are coming. Oh, okay, sir. All So right. it's just like I haven't done that, so that's why I'm finding this part difficult. so it's just like कि आपको जैसे घर से कॉलेज जाना होता है ना, so you don't remember the path, you just go once and you then ultimately next time you make your own way, नहीं होता है कि ये देखा था इससे राइट होना था शायद, so you don't keep the entire map in your mind, but when you start from home you will ultimately reach to the college, ऐसा होता है ना? Yes, sir. हाँ, so that's the same thing will happen here. एक बार दो बार बना लो, and then whenever you find any particular fraction ना, you will visualize कि ये कैसे वैल्यू आई थी, तो आ जाएगा। जैसे तुम देखो, जैसे यहाँ ये 2/7 है ना, तो 7 वाला तो हमने टेबल एक ही बार बनाया है, मतलब है ना, एक 7 में एक बार बनाते हैं और वो 14 2/7 से स्टार्ट होता है ना, 1/7 का। तो अब 2/7 के लिए यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन, जस्ट इसी को दो बार लिख लेंगे तो 28 4/7 हो जाएगा। हाँ sir, okay, I understand. You're just adding. हाँ, Makes sense. I just हाँ, तो मतलब once you make the table, you will be pro in that. मतलब एक से दो बार बना लोगे तो हो ही जाएगा, किसी किसी के लिए तो एक बार में ही काफी है। So now let's say here I am giving you the number which is being changed. But यहाँ मैंने क्या बोला था कि ये जो चेंज है ये ऐसा रिप्रेजेंट करे या ऐसा रिप्रेजेंट करे या ऐसा रिप्रेजेंट करे, एनीथिंग इज एनफ टू टेल अबाउट द चेंज। मतलब ऐसा नहीं कि सबको बताना जरूरी है चेंज के लिए, या तो तुम केवल ये बताओ या केवल ये बताओ या केवल ऊपर वाला बताओ, कोई भी बताओगे तो यू विल बी एबल टू टेल अबाउट द चेंज, है ना, इन कंप्लीट वे। तो अब मैं एक एग्जांपल तुम्हें लेता हूँ एंड आई विल बी आस्किंग यू कि अ नंबर चेंज्ड बाय या इंक्रीज्ड बाय, उसको ऐसे लिख देते हैं, इंक्रीज्ड बाय 2/5। अब तुमसे अगर मैं पूछूंगा कि इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट, बोलो। अगर इंक्रीज बाय 2/5 है तो इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट होगा? एनीवन? दैट नंबर चेंज बाय, ऑफ कोर्स लक्ष्मण, 40%। लक्ष्मण तुम बोल नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है? और सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ? 2/5 बढ़ने का मतलब 40% बढ़ेगा। So I understood that, sir. हाँ, But what?
Yeah, I don't have the table, so I'm a little. ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, Yes. बट तुम समझ गए ना कि आ Yes, कैसे sir. रहा है। I understood हाँ, और how much it is हाँ, increased by in percentage once अगर I have the value. हाँ ठीक है, अगर डायरेक्टली पूछा जाए इसी इसी वैल्यू को देके पूछा जाए कि इंक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट, हम उसको डायरेक्टली 140 बोल देंगे, है ना। मतलब अगर आपको हाँ 40 सर. पता है तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका रेशियो बताओ, चेंज का रेशियो, तो क्या बोलोगे? 2/5 है ना, तो 5 में 2 बढ़ा है, तो 5 में 2 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 7। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंक्रीज्ड टू व्हाट फ्रैक्शन, तो आप इसको 7/5 बोल दोगे, है कि नहीं। 1 + 2/5 इज 7/4। तो किसी एक फिगर को अगर हम दें तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ऑल द अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज, है ना, जस्ट लाइक दिस। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला, बहुत सिंपल एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। मैंने बोला कि अ पर्सन गॉट, अब ये चेंज जो है ना किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे मान लो कि सैलरी इंक्रीज हुआ तो चेंज होता है, आपका कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बना तो वो भी एक चेंज हुआ, मतलब उसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई ना। पहले आप खरीदे थे तो कुछ और था, बेच रहे हो तो कुछ और हो गया। सैलरी आपकी बढ़ गई। ऐसा कई मामलों में यू विल फाइंड और यू विल बी सी द सेम क्वांटिटी व्हिच विल हैव अ वैल्यू, समथिंग इज एट वन टाइम एंड समथिंग एल्स एट वन टाइम। तो वैसे सब सिचुएशन में ये बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। तो अगर मैं तुमसे देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 25% प्रॉफिट पे a pen was able to sold, या पेन was sold in 95 rupees, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन आता है हम सोचने लगते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या था, एंड हमारा सीपी का फॉर्मूला क्या था एसपी के थ्रू। ये सब कुछ नहीं करना होता है ना। आप सिर्फ ये समझो कि यहाँ पे जो हर बार मैंने बताया कि कंसिडर दिस एज अ चेंज, कि सीपी changes to SP by doing what? Either by adding profit or subtracting loss. तो अब यहाँ पे अगर बोलता है कि 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 25% इंक्रीज हो रहा है सीपी में, है ना। द चेंज हियर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। प्रॉफिट अगर 25% है तो चेंज हियर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो इसका रेशियो में चेंज कितना होगा बताओ? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, और 1/4 का मतलब रेशियो में चेंज कितना होगा? 4:5। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो जो होगा 4:5 होगा, मतलब 4 में 1 बढ़ेगा और 5 हो जाएगा। अब देखो ये 5 की वैल्यू जो है वो 95 है, तो यानी कि 4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 76 हो जाएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस लर्निंग, है ना, जो अभी हम लोग कर रहे थे। एंड इट विल मेक मेनी ऑफ द चैप्टर्स वेरी इजी फॉर यू। मतलब यहाँ तो मैंने फिर भी इतना सारा लिखा तुम्हें समझाने के लिए। व्हेन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट देन आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे कि ये आंसर जो है 76 होगा। समझ में आ रहा तुम लोगों को मेरी बात? बोलो। मंजिमा, वैभव, लक्ष्मण, खुशी, अस्तित्व, So, एंजल। how did it become 76? I didn't understand this part. देखो 5 की वैल्यू 95 है, Yes, sir. तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 95/5 कर दो, है ना। हालांकि Okay. थोड़ा सा रेशियो से और समझ में आएगा जब रेशियो का चैप्टर करेंगे, Oh, okay. है ना। तो 1 की वैल्यू 19 हो गई, तो ये 19 हो जाएगा। तो फिर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 × 4, तो 76 हो जाएगी। यही हमारा सीपी है ना। Yes, sir. Yes, sir. Now it makes sense. हाँ, तो अब जैसे ये चेंज जो है मैंने मोस्टली क्या चेंज लिया है? पॉजिटिव चेंज लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव चेंज हो, आपका नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एनी क्वांटिटी, है ना, जैसे एक क्वांटिटी 150 से घट के 30 घट के 120 हो गई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेशियो में चेंज क्या लिखेंगे? रेशियो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? 5:1. 5:1. 5:1:4।
अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनल चेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बोलो। आई विल राइट डिक्रीज्ड बाय, क्योंकि यहाँ नंबर घटा है। डिक्रीज्ड बाय व्हाट फ्रैक्शन, 1/5. 1/5, and decreased to what fraction, 4/5. वेरी गुड। और परसेंटेज चेंज में अगर हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज बाय, डिक्रीज बाय व्हाट वैल्यू, मतलब व्हाट परसेंटेज, 20%। 1/5 20% होता है, और डिक्रीज टू व्हाट परसेंट, 80%। 20% घटेगा तो 80% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस वाले एक्सरसाइज को करना है। नाउ लेट्स गो बैक टू द सीट, उसको आपको करना है एक एक करके। और नहीं, इसका कोई वो नहीं है आपके पास, मतलब देर इज नो अदर वे अराउंड कि इस चैप्टर को आप इग्नोर करो। सो एवरीबडी मस्ट और एवरीवन मस्ट हैव टू डू दिस चैप्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि बुक, जो बुक में थोड़ा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, फोल्डर में थोड़े कम है, तो अभी फोल्डर वाले कर लो अगर इफ यू डोंट हैव द बुक। एंड विद इन फ्यू डेज, 1-2 दिन में आप लोग सबके पास पहुंच ही जाएगा बुक्स, है ना। होप, आई होप कि फॉर्म में आपने फॉर्म में आपने सही एड्रेस डाला है ना, डाला है ना आप लोगों ने सही से। Yes, sir. ठीक है, तो उसी उसी एड्रेस पे हम भेजेंगे, वापस ना आ जाए, ये ध्यान देना। सर, हाँ तो मैं तो वही सेंटर साथ ही हूँ। हाँ, सेंटर पे आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? वेब। हाँ, तुम सैटरडे संडे आ रहे हो ना इस बार? हाँ हाँ हाँ। 2 बार से नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको जैसे मान लो ये 45/7 है, तो इस केस में हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि 45/7 को अगर हम नंबर लाइन पे ट्राई करेंगे डालना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन पे बदल दोगे तो इट विल हो जाएगा 6/3/7। 6/3/7 कहने का मतलब क्या हुआ, and the purpose behind this exercise is to show that mixed fractions are very useful। तो अगर मान लो कि यहाँ से हम 0 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर ये 7 को भी 7 पार्ट्स में बांट दोगे, मतलब ये 6 to 7 को, और 7 पार्ट्स में बांटने के बाद यू विल टेक द 3 पार्ट्स। तो ये वाली जो पॉइंट होगी यहाँ पे, इट विल बी 6/3/7। तो ये आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल स्टडी, है ना। ये दोनों को मैंने एक्सप्लेन तो किया ही था कि इफ 3/4 ऑफ द वर्क is being done in 27 days, इसका मतलब क्या हुआ, you have to speak in your mind what does this mean, what does the meaning of 3/4 of the work। 3/4 of the work मतलब एक जो काम जिसके बारे में बात हो रही है उसके 4 इक्वल पार्ट्स को विजुअलाइज किया जाए, तो उसमें से 3 पार्ट आपने 27 डेज में कर दिया है। दैट मीन्स ईच पार्ट विल टेक 9 डेज टू कंप्लीट। तो अगर आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है तो इट विल टेक 36 डेज टू गेट कंप्लीटेड। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर ये जो है 3rd नंबर का एक्सरसाइज करना है, जिसमें क्या लिखता है, इफ अ वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 डेज, मतलब एक काम जो है जो 60 डेज में कंप्लीट होता है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, और इसको फ्रैक्शन एज वेल एज परसेंटेज, मतलब व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क यहाँ लिखना चाहिए था कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन एज वेल एज परसेंटेज, दोनों में आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे 30 डेज है और पूरा काम 60 डेज होता है, तो यू नो दैट 30 डेज में आपका हाफ वर्क होगा एंड इट विल बी 50%। इस तरह से टेबल के थ्रू और कैलकुलेशंस के थ्रू ये सारे नंबर्स का बताना है। सेम यू हैव टू डू हियर, है ना। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी शो यू द, ये आपके ड्राइव में ना एक एक डिटेल्ड वाला भी होगा फ्रैक्शन का सीट। डिटेल वाले को करो तुम तो ज़्यादा बेटर है।
नहीं नहीं, ये तो बुक्स में है ही। मतलब कोई नहीं, आप इसको भी कर सकते हो। बुक में एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस है, तो जिन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो ज्यादा क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 144 है ना, तो इसके लिए भी ज्यादा नंबर ऑफ डेज है, और एक 90 डेज वाला भी है, तो वो भी कर सकते हो। फिर ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, आप समझ रहे होगे ना क्या क्या करना है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन टू डू द एक्सरसाइज। आप इसको करके, और आप इसको बीच में भी छोड़ सकते हो, इफ यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद द एक्सरसाइज, तो यू कैन मूव अहेड। जिन लोगों को अभी भी फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, वो आप उसको कंप्लीट करोगे। तो जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, उसमें 10 मल्टीपल लिखना है गिवन मिक्स फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे मल्टीपल जो लिखना है वो ऐड करके लिखना है। जैसे मान लो 6 2/3, ये पहला मल्टीपल हुआ। सेकंड मल्टीप्लाई क्या होगा, इसी में हमको 6 2/3 ऐड करना है। तो हमने तुम्हें क्या बताया कि इंटीजर इंटीजर ऐड करोगे तो इट विल बी 12, और 2/3 ऐड करोगे तो 4/3। मंजिमा, अगर तुमने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो ये एडिशन बहुत मुश्किल लगेगा तुम्हें, तो काइंडली वॉच द वीडियोस, है ना। आज वाला भी अपलोड कर देंगे, दोनों देख के और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। एंड आस्क फॉर अ डाउट क्लास टुमारो, ठीक है, तो हम रख देंगे उसको। तो 12 से ये 13 हो जाएगा, और 1/3, क्योंकि 4/3 से 3/3 हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 3/3 वुड बी 1। तो इस तरह से 10 मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो ये सबका 10-10 मल्टीपल आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि सबका लिखो। आई एम नॉट बीइंग रूड टीचर की आपको आता है तब भी लिखना है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये नाउ हैव बीन you have learned what I am trying to teach you, तो आप इसको 2-4 करके छोड़ भी सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे मान लो कि ये एक सब्सट्रैक्शन है, तो इसको तब तक सब्सट्रैक्ट करना है जब तक कि ये जीरो ना आ जाए। तो ये लिखा हुआ है कि मेक मल्टीपल बाय सब्सट्रैक्टिंग द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑलमोस्ट ये सारे ना जीरो हो जाएंगे। नहीं होता है तो कहीं ना कोई दिक्कत है, या हो सकता है नहीं भी हो, कोई कोई हो सकता है ना भी हो, लेकिन प्रॉब्ली हो जाएगा आई थिंक। फिर भी तुम देखना, 100 में से 6 2/3 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा। तो हमने क्या बताया तुम्हें कि पहले इंटीजर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 94। 94 में से 2/3 घटाएंगे तो हमारा पूरा 94 डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आई विल टेक 93 एंड 1 अलग से, और 1 में से आप 2/3 सब्सट्रैक्ट करोगे, तो 1 में से 2/3 सब्सट्रैक्ट करने पे यू विल बी गेटिंग 1/3। सो दिस नंबर विल बी 93 1/3। अब एक बार ये पूरा प्रोसेस मैंने लिख दिया। यू डोंट हैव टू राइट ऑल द प्रोसेस एवरी टाइम। अगर आप डायरेक्टली डिक्रीज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें फिर से 6 2/3 घटाना है। तो अभी क्या होगा, 93 - 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 87। और आप क्या देख रहे हो कि 1/3 में से इसका 1/3 तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बट यू विल बी लेफ्ट विथ वन मोर 1/3 जो यहाँ पे है बचा हुआ, क्योंकि 2/3 है ना ये, तो 1/3 बच जाएगा। अब फिर 87 में से आप 86 को बाहर रख लोगे, और 1 में से 1/3 घटाओगे, तो ये आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2/3। तो फाइनल वैल्यू विल बी 86 2/3। ये आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ऐसे आपको सब्सट्रैक्ट करते जाना है। अब इसके बाद का सब्सट्रैक्शन वुड बी वेरी इजी। 86 2/3 को में से 6 2/3 अगर घटाना है, तो ऑफ कोर्स 80 + 6 में 2/3 है, और ये 6 2/3 हट जाएगा, तो ये फाइनली तुम्हारे पास 80 बच जाएगा। So this is how we will be doing it, and make the subtraction. उसके बाद 6th क्वेश्चन है, दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें आपका फर्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है कि देयर इज अ वर्क which was completed in 720 days and the cost of the work was 5400। तो इसमें किसी एक डेटा को दिया हुआ है, बाकी तुमको फिल करना है। जैसे हम एक कर देते हैं और या एक बताते हैं, या फिर अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर यही बोला जाता है कि हाफ वर्क हुआ होता, तो उसमें कितना दिन लगता, 360 डेज लगते, और कितना पैसा मिलता इसका हाफ, विच इज 2700। तो अब ये हाफ मैंने दिया तो बाकी दोनों फिल करना है। और यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया हुआ है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द अमाउंट यू हैव गॉट। तो पक्का है कि वर्क हाफ मिला हुआ होगा।
और इसमें भी आधे दिन लगेंगे। तो आपको बेसिकली एक के रेफरेंस में दूसरे को उसी फ्रैक्शन में देखना है और उसको डिवाइड करना है। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन पाई चार्ट बेस्ड डीआई, है ना। पाई चार्ट बेस्ड डीआई में बहुत हेल्प करेगा ऐसी एक्सरसाइजेस, ठीक है, इसलिए आप इसको करना। अब ये जो है इट इज द सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे था, ये वाला, बट यहाँ पे इसको रिवीजन के लिए डाला गया है छोटा सा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इस पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, ये 8th वाला जो है अभी तुम छोड़ दो इसको, ठीक है, डू नॉट डू दिस वन राइट नाउ। आप 9th वाला करो। 9th वाले में क्या बोलता है कि हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल कवर, हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल कवर, ये क्या है, इन 45 40 18, इसी तरह से एक ही मिनट्स दे रखा हुआ है। इफ इट ट्रेवल्स बाई, अगर 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है, ठीक है, अगर जैसे मान लो 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है ट्रेन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में वो 80 किलोमीटर जाता है, यही हुआ ना। पर आवर का मतलब क्या हुआ 60 मिनट्स में। तो अगर आपका सेकंड जो है, जैसे 45 मिनट, सॉरी मतलब यहाँ पे 45 मिनट्स अगर पूछता है, तो 45 मिनट जो होगा वो 60 मिनट का कितना पार्ट है? कैन एनीबॉडी टेल मी 45 मिनट इज व्हाट पार्ट ऑफ 60 मिनट? 3/4 नहीं दिखता है तुम लोग को अभी भी? इतना सारा एक्सरसाइज किए अभी तक। सो एनीवे मतलब आप कोशिश करना देखने का, और नहीं होगा तो आपको ये तो पता ही है कि 45/60 हो जाएगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द आवर, है ना। जो 45 मिनट्स है वो 3/4 ऑफ द आवर है। तो ऑफ कोर्स जो ये जो होगा वो एक 80 किलोमीटर का 3/4 उसमें रन करेगा, तो 60 किलोमीटर वुड बी द आंसर। तो इसी तरह से मल्टीपल स्पीड्स दिए हुए हैं और मल्टीपल मिनट्स दिए हुए हैं। बार बार आप इसको 60 से कंपेयर करोगे, तो जैसे 24 जो है 2/5 ऑफ आवर है, 18 जो है 3/10 ऑफ आवर है। सो यू जस्ट मतलब 60 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, तो इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोगों को, सो दैट एवरी टाइम व्हेन यू गेट द मिनट और सेकंड, तो आपको पता हो कि मिनट सेकंड जो है वो मिनट का कितना पार्ट है और मिनट जो है वो आवर का कितना पार्ट है। इट्स जस्ट लाइक जितना आसानी से आप ये बता देते हो ना, कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर इज 30 मिनट्स, तो बहुत आसानी से तुम बोलोगे आधा घंटा, है ना। यू विल नेवर आस्क और थिंक और इवन गेट कंफ्यूज्ड while saying कि 30 minute is half an hour. So everybody knows, everybody is very used to telling कि जैसे ही 30 मिनट होता है तो half an hour, because that you see कि 30 दो बार में हाफ बनता है। बट जैसे 20 मिनट्स बोल दिया तो वो भी तुम्हें दिखना चाहिए, इट शुड बी 1/3। अगर आपको 24 मिनट बोल दिया तो वो भी तुम्हें दिमाग में चलना चाहिए कि इट शुड बी 2/5। सो representing parts into fraction is very important, और especially in case of time, है ना, क्योंकि वो टीएसटी वगैरह में बहुत हेल्प करेगा। अब ये भी एक बहुत खूबसूरत सा एक्सरसाइज है ना। इसमें भी आपको बहुत कुछ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन को करने में आपको मतलब ये प्रैक्टिस कराएगा। जैसे मान लो कि 1 लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट पार्ट एंड परसेंटेज विल बी देयर इफ वी पुट 1 लीटर वाटर इन अ बॉटल ऑफ 1 लीटर। जैसे 1 लीटर पानी है और 1 ही लीटर की बोतल में डालते हैं, कितना परसेंट पानी होगा उसमें? बोलो। 100%। लेकिन अगर 1 लीटर तुमने पानी लिया और तुम्हारे जो बोतल का वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, तो कितना परसेंट पानी है अभी उस बोतल के बोतल में? 1/2 50। इट इज 50%। हाँ, तो इसी तरह से अगर ये जैसे बहुत आसानी से बोल दिए कि 2 लीटर की बोतल है तो 1/2, बट अगर यही मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर 1.25 लीटर का है वेसल या बॉटल जो है 1.25 लीटर का है और पानी उसमें 1 ही लीटर है, सो नाउ व्हाट व्हाट पार्ट ऑफ या व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेसल इज वाटर? ये मुश्किल हो जाता है तुमको, तो इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें एक ऐसा तरीका, जैसे तरीका क्या है
आपको ये देखना है कि कितना पार्ट है। तो 1 लीटर इज व्हाट पार्ट ऑफ 1.25 लीटर। तो ऐसे अगर करोगे तो इट विल टेक टाइम, बट थोड़ा विजुलाइज करोगे तो आपको ये दिखेगा कि 1 लीटर जो है 0.25 का 4 सेट है, और 1.25 लीटर जो है वो 0.25 का 5 सेट है, यानी कि 4/5 है। एंड 4/5 इज योर 80%। एंड ये कहाँ से आ रहा है? वो आपके टेबल से। तो इस तरीके से ये 2 लीटर 1.5 लीटर सब दे कर दिया हुआ है। तो ऐसे भी कॉपी पे नहीं करना है, इसको आपको सोच सोच के करना है, so that you can actually be mentally strong or efficient in calculating fractional number, fraction based number in fast way. फिर इसके बाद का जो एक्सरसाइज है 11th वाला, ये वही एक्सरसाइज है जो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें ये था कि 60 इज इंक्रीज बाई 20 टू बिकम 80। तो इसका रेशियो रिप्रेजेंटेशन होगा 3:1:4। परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन अगर 100 में हम कर रहे हैं तो इंक्रीज बाई 33 1/3%, और इंक्रीज टू 133 1/3%। फ्रैक्शन जो होगा वो 1/3, इंक्रीज बाई 1/3 और इंक्रीज टू 4/3। तो इसी तरह से इन सारे एग्जांपल्स को करने हैं यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज का। और हाँ, इसमें लिखा हुआ रिवर्स ऑर्डर में। तो जो भी आप फॉरवर्ड ऑर्डर में कर रहे हैं, जैसे 120 से 30 बढ़ा के 150 कर रहे हैं, तो इसके साथ आप 150 से 30 घटा के 120 भी करना है। तो बेसिकली अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अगर वो है, तो बेसिकली 18 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए बताओ। Yes. Yes, sir. 12 और 13 ये दोनों छोड़ देना है, ये कल बताएंगे हम। और ये आपको बेसिक ऑफ फ्रैक्शन, या फिर जो हमने ये लिखा था लास्ट वाला सीट, ये भी दिया हुआ है। सेकंड जो फ्रैक्शन में 2 एक्सरसाइज है, तो ये आपको करना है, कोशिश करना है। इसमें अब MCQs भी करना है, एंड यू हैव टू डू द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज नॉट MCQ, वो भी कंप्लीट करना है। ठीक है, और बाकी कल की क्लास में हम परसेंटेज का बेसिक्स और परसेंटेज के मतलब जो की पॉइंट्स हैं वो हम बताएंगे, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? तो जितना अभी मैंने बताया तुम लोगों को, इन सारे एक्सरसाइज को पूरा करो। एंड लाइक एन होमवर्क, आई हैव क्लिक द फोटो ऑफ ऑल ऑफ यू। जो लोग आज क्लास में हैं, अगर आपका नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट रहेगा, आप लोगों के घर पे कंप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, आई हैव मार्क द अटेंडेंस। ठीक है, भेज दो ग्रुप Sure, पे। sir. Yes, ये sir. लोग थे, कोई झूठ बोल के नहीं निकल सकता है। ठीक है, हाँ, आई एम गिविंग यू वो कि आप चाहो तो वो जरूर कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ करके बाकी छोड़ सकते हो, इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अदरवाइज आप